Good evening, my dear friends. Good evening to everyone in India, and good morning to all my best friends in America and other parts of the world. Dear friends, we welcome you to the International Fab Talks today. It's a beautiful day out there and a beautiful evening in India. Dear friends, today we have a wonderful celebrity, a guest with us, who is out here to share and inspire us on his life and his achievements. He's here, a very simple person, but yet very down to earth, who has been in the IT sector. He would like to share his vision and his mission for the future and for the present as well. I'd like to introduce our special guest today. I'd like to get his name. His name is Mr. Parveen Malik. I've got it right now. Yes, Mr. Parveen Malik from Rohtak, Haryana, India. Dear sir, आपका बहुत बहुत we welcome you. धन्यवाद आपका that you have joined the session. Thank you. Thank you so much, ma'am. आपने टॉक के लिए बुलाया, धन्यवाद. Thank you, sir. We've sent a small invitation to sir, requesting sir to join the International Fab Talks and share a few moments with us. And sir said yes. Sir accepted the invitation, तो इसीलिए हमें बहुत खुशी हुआ जब आपने हमारा invitation स्वीकार किया था. बहुत अच्छा लगा सर. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. Same here, ma'am. Same here. Thank you. Dear friends, I'd like to introduce our special guest, Mr. Parveen Malik from Rohtak, Haryana. Officially, it's our duty to introduce our guest in an official way. Sir, आपके permission के साथ थोड़ा सा officially आपका introduction हो जाएगी अभी. जी sir. No issue. Thank you. Thank you, sir. Dear friends, it's time now to introduce our guest and to give you a little more information on his professional journey. He is none other than Mr. Parveen Malik from Rohtak, Haryana in India. He belongs to the IT sector, the information technology part, that arena. He has completed his BTech. He worked very hard to complete his BTech and he has finished it in information technology in the year 2012 from Kurukshetra University. And he's been a very good student and he has put his best. And today he's here, giving his services to the IT companies. He has been working in many firms as a software engineer. Now at present, he is working in a company as a software expert. He's giving his services for the past 6 years, and his designation is a senior software developer. He would like to share his journey with us today and inspire all the youngsters out there who are in the IT field, how you could also become a great IT expert, how you could inform your parents and your friends about the importance of AI, about the importance of the information technology or the information technology boom that has taken place. So let's go ahead and get connected with our special guest, that is Mr. Parveen Malik. Sir, welcome sir to the session. My pleasure, ma'am. Thank you so much. आपने एक valuable time के लिए मुझे बुलाया, उसके लिए धन्यवाद. और कोशिश रहेगी कि आपके ऑडियंस के साथ मैं कनेक्ट कर पाऊँ. एक्चुअली आईटी इंडस्ट्री से थोड़ा सा डिफरेंस यही रहता है कि थोड़ा सा समझते हैं कि आईटी इंडस्ट्री एक ह्यूज इंडस्ट्री है. एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड से. जब मेरी स्टार्टिंग करियर था बीटेक का, तो उस टाइम पे मैंने एज ए टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट किया था आईटी इंडस्ट्री में. एंड आफ्टर दैट प्रीवियसली 6 साल से मैं कंपनी में सर्व कर रहा हूँ जो मोस्टली वेब एप्लीकेशंस बनाती हैं. और वेब एप्लीकेशंस आज की टाइम आईटी इंडस्ट्री में आप जानते हैं कि आईटी से रिलेटेड चीजें, वर्ल्ड चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो रही हैं चीजें, और टाइम टू टाइम ग्रो करना पड़ता है. एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें आप अगर आप स्टार्ट करते किसी चीज से, तो फिर दूसरी चीजें उसमें ऑटोमेटिकली एनहेंस करना पड़ता है, ग्रो करना पड़ता है, स्किल अप करना पड़ता है अपने आप को. और यही हमने सीखा है और यही कोशिश रहेगी इन केस अगर कोई हमारे यंगस्टर्स हैं तो उनको भी ऐसे ही गाइड किया जाए कि टाइम टू टाइम अपने आप को कैसे अपग्रेड किया जाए, कैसे आपको काम डाउन करना अपने आप को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हर 6 मंथ में टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है. और एंटरप्रेन्योर्स की डिमांड और एंटरप्रेन्योर्स की और सोशल डिमांड्स, सोसाइटी की डिमांड्स बढ़ती रहती हैं, घटती रहती हैं. उसी अकॉर्डिंग हमें सॉफ्टवेयर्स को डिजाइन और रिमोल्ड करना पड़ता है. तो यही सब है. और जस्ट अकॉर्डिंग टू यू. Yeah, thank you so much, sir, for sharing. That's really very nice. I've been muting myself and sir has been letting me know that I'm on mute.
Yes, sir. This is really the mark of a great person in the IT sector. He says, yes, ma'am, you're on mute. Thank you, sir, so much. Dear friends, this is what our friend has to share with us today about the IT field, and let's get to know more about it. डियर सर, आप अपने स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं कि भाई आईटी सेक्टर में हैं आप इतने सारे साल, 2012 में आपने कंप्लीट किया अपना बीटेक, तो उसके बाद में आप दूसरे फर्म्स में काम कर चुके थे और अभी कर रहे हैं सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की साथ, तो स्ट्रेस तो होती होंगी आपको, तो फिर आप इसको कैसे बैलेंस करते हैं सर? हमें भी सिखा दीजिए, हमारे यंगस्टर्स जो है उनके लिए काम आने वाली थोड़ी बातें बता दीजिए। यस मैम, देखिए मैम, स्ट्रेस तो एक हमारी लाइफ का पार्ट बन जाता है जब आप किसी चीज को डेडिकेटली अटैच होके चीजें करते हैं। जैसे आप कोई चीज करना चाहते हो, ठीक है, तो उस चीज पे आप अपना फुल डेडिकेशन देते हो और फुल अचीव करना चाहते हो, 100% आप अपनी तरफ से तो देते हो, लेकिन सामने से प्रोग्रेस वो नहीं मिल पाती जो आप चाहते हो। तो उस स्ट्रेस को आप स्ट्रेस कह सकते हो उस चीज को, लेकिन वो स्ट्रेस नहीं होता है, वो अपने आप को एक मूव ऑन करने के लिए, अपने आप को एक बताने के लिए कि भैया ये स्टेप अप है, इसमें अगर आपका काम नहीं चला है तो आप और एफर्ट्स डालिए और अच्छे से कीजिए, इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। यही मैंने अपनी जर्नी में सीखा। जब मैंने स्टार्ट किया तब मैं एज ए टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव एसएपी एसआरएम पे था। तो उससे पहले मेरे स्किल सेट था मेरा जावा एंड आईओएस, और उस स्किल की मैंने टेक्निकल ट्रेनिंग्स ली। लेकिन मुझे लगा कि मैं इस फील्ड में ज्यादा हैवी फील्ड है तो इसमें नहीं ग्रो कर पाऊंगा आने वाले टाइम के लिए। मैंने अपना सेटअप माइंड सेट किया कि आने वाला टाइम वेब एप्लीकेशंस पे, ऐप डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस्ड रहेगा। तो मैंने अपनी स्किल्स को थोड़ा एनहेंस किया दूसरे लेवल में और अपना स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कि यार स्ट्रेस बहुत हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन मैम स्ट्रेस को स्ट्रेस मान के अगर करते हो तो थोड़ा सा रहता ही है कि ये स्ट्रेस ही हो गया। और इसको अगर आप चैलेंज लेके मोटिवेशनली लेते हो, अरे यार कुछ नहीं है, अभी ये है, कल को दूसरी चीज आएगी, दूसरी भी सीखेंगे, तीसरी भी सीखेंगे, और टाइम टू टाइम चेंजेस भी आती रहती है मैम। जैसे अभी मान लीजिए अभी शार्क टैंक इंडिया जैसे शोज आ रहे हैं, ठीक है, कम एज के लड़के भी अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स खोल रहे हैं। तो जब उनके आइडियाज को सुनते हैं, देखते हैं, और उनके जो पीओसीज होती हैं, एक्चुअली हमें सॉफ्टवेयर में वही बनाना पड़ता है जो सामने वाले के माइंड में चल रहा होता है, उसको इमेजिन करना पड़ता है कि उसको कैसे कैसे चीजें चाहिए एप्लीकेशन में, और फिर उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज मैनेज करने होते हैं। तो एक्चुअली मैं हूँ तो सॉफ्टवेयर डेवलपर, लेकिन एज एसआरएस भी वर्क करना पड़ता है, क्लाइंट्स को डेमो भी देने पड़ते हैं, क्योंकि जूनियर्स लेवल पे चीजें एज ए सीनियर लेवल पे करना पड़ जाता है। तो उनमें जो मैंने स्ट्रेस को तो यही दिखाना है कि स्ट्रेस जस्ट फॉर मूवमेंट होता है। अगर इससे ओवरकम कर गए तो वो स्ट्रेस नहीं है, वो एक अचीवमेंट है। और अगर वो स्ट्रेस को अपने स्ट्रेस रख लिया तो वो स्ट्रेस ही मान लिया, उसके अंदर से निकल ही नहीं पा रहे हो, तो वो रियल टाइम स्ट्रेस होगा। वंडरफुल सर, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया कि भाई हर स्ट्रेस को एक चैलेंज के रूप में लेना है, क्योंकि दैट उस आप वो स्ट्रेस आपको आगे ले जाएगी। यस मैम। अगर कोई नई चीज है सीखने के लिए तो सीख लेना है वहां से, एंड कीप अपडेटिंग योर सेल्फ, दैट्स वेरी नाइस। क्योंकि अगले वाले के मन में ना, आगे वाले के मन में क्या है, उनका इच्छा क्या है, बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट एंड गिव योर बेस्ट। दैट्स नाइस, वेरी नाइस सर, आई रियली लाइक दैट आंसर। यस सर, आप बचपन में कैसे थे? बचपन में ही से आपको इंटरेस्ट था इसमें, या अभी अभी नया से आपको आईटी सेक्टर में आने का दिल फील हुए थे आप, कैसा? हाउ? एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड जो है मैम, एक विलेज से बिलोंग करता है। दिल्ली और रोहतक के बीच में एक विलेज है खरावर, वहां से बिलोंग करता है। तो विलेज में कोई ऐसा मोटिवेशनल या फिर ऐसा कोई किसी को देख के ऐसा नहीं है कि मैं आईटी का इस भाई ने अगर बीटेक कर लिया तो मैं भी कर लूं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं नाइन्थ में जब मेरे टीचर थे प्रोफेसर जय सिंह मलिक, रोहतक सिटी में ही, उन्होंने मेरे से पूछा बेटा क्या करना चाहते हो। एक्चुअली वो बाय रिलेशन वो भाई लगते थे, और बाय एज वो बहुत काफी बड़े थे। तो उन्होंने पूछा बेटा क्या करना चाहते हो। मैं सर आईटी इंजीनियर बनूंगा। बोला नाइन्थ में, अभी से पता है तेरे को। बोला अपने गांव में तो कोई आईटी इंजीनियर नहीं है। तो मैं सर बस सोचा है, एक आध कुछ देखा है। तो फिर दस दस वहां से स्टार्ट हुआ था, नाइन्थ में डिसाइड किया था कि आईटी इंडस्ट्री में एंटर करना है।
एंड उसके बाद +2 में अपना बीएससी के साथ साथ में बीटेक में जब मेरा अच्छा रैंक नहीं आया तो बीएससी में एंटर कर लिया था। लेकिन मैं 6 महीना 7 महीना फिर तैयारी करके दोबारा फिर बीटेक, ईयर गैप ना बने, तो उसके बाद ही मैंने बीटेक स्टार्ट किया था। 6 महीना वेट करना पड़ा था मैम। उस टाइम पे एआई ट्रिपल का काफी अच्छा, एक्चुअली वो जैसे आज के टाइम एक साइकोलॉजी का फील्ड, एक नया फील्ड आया है, तो लोग हर कोई उसमें एंटर करता जा रहा है। ऐसे उस टाइम पे 2008 में था, तो 2008 के आसपास यही था इंडस्ट्री में। हालांकि सत्यम कंपनी वाला जो फ्रॉड हुआ था, सब कुछ हुआ था, तो उससे थोड़ा सा फर्क पड़ा था आईटी में, जॉब्स पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू लड़के बीटेक की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे थे। तो उसी से डिसाइड हुआ था पहले से ही कि हाँ, बचपन से थोड़ा सा था कि स्पोर्ट्स प्लस बीटेक एंड टेक्निकल फील्ड में थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा रहा है। जैसे घर में कोई, एक्चुअली मैं काफी टोकी पर्सन हूँ, उसके लिए सॉरी। नहीं, लेकिन लव टू अगर मैं शेयर। एक्सप्रेस, जस्ट अगर मैं टच हो जाता, तो मतलब समझ में आती सामने वाले से बात करते हुए, जैसे अब आपसे फील आ रहा है अच्छा, तो मैं अपना जो होता है सामने होता है वो सब कुछ स्ट्रेट टू फॉरवर्ड बताना शुरू कर देता हूँ। जी तो जी। बचपन से यही था मैम कि गांव में रेडियो से जमाना देखा है, आज कंप्यूटर तक, पाम लैपटॉप और ये स्मार्टफोन तक आ गए हैं। करंटली मेरी एज है 34+, यानी कि 35 का हो जाऊंगा मैं जैन में। ठीक है। तो यही देखा मैम कि अगर आपको अचीवमेंट जो आप करना चाहते हो वो नहीं मिल पा रहा है, तो आपको फेड अप नहीं होना है। समय देगा, समय ही सब कुछ करता है, समय पे ही सब चीजें होती हैं। स्टार्ट किया बीटेक से, बीटेक के बाद कुछ लगा कि हाँ, अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहिए, उसके लिए गैप रखा। स्टार्टअप में लगा कि 2 साल दे दिए हैं। स्टार्टअप में ऐसे रेस्टोरेंट ओपन करना चाह रहा था, फैमिली रेस्टोरेंट में फाइनेंशियली कुछ चीजें सेट करने की कोशिश की। शादी से जस्ट पहले की बात थी वो। तो उसके बाद ये लगा कि यार, अभी नहीं कर पा रहे हैं, एज ए बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, तो जो पुरानी मेरी स्किल है उसी पे वापस आ जाते हैं। तो वो जर्नी तब से अब कंटिन्यू है मैम। यस। Wonderful, sir. That's really very nice. Thanks for sharing. Thanks for opening up. That's really nice. We wish that यस। you have also your restaurant as well. और हमें बताइए, we will definitely come. वो भी रखिए, क्योंकि ना एक्चुअली multiple streams of income रहना है। नो मैम, एक्चुअली स्टार्ट किया था, हम्म, स्टार्ट करने के जस्ट बाद फाइनेंशियली क्राइसिस आए, फिर जी। उनको हमने रेंटर को दे दिया, तो उनसे भी वो चीजें नहीं चली। तो अब उसको जस्ट फॉर ये रखा हुआ है कि जब जिस दिन भगवान ने अच्छा करना होगा या ऊपर वाले ने अच्छा देना होगा, उस दिन इसको स्टार्ट करेंगे, अच्छे लेवल पे करेंगे। जब तक अपना जो भी रोजी रोटी, जो भी अपना मेन स्ट्रीम है वो आईटी है, तो उसको सर्व करते रहें। और अभी पार्ट टाइमली मैं एक अपना खुद का भी एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करने वाला हूँ आने वाले 2-3 साल में, जो कम्युनिटी से रिलेटेड रहेगा, स्पोर्ट बेसिस पे। कि जो हम डेली बेसिस पे देखते हैं कि हम हमारी गवर्नमेंट्स जो नहीं कर पा रही हैं, एज ए एंटरप्रेन्योर काफी हमारे स्टार्टअप्स ओपन हो रहे हैं, और वो काफी सक्सेसफुली ग्रो भी कर रहे हैं। तो उन्हीं बेसिस में हमारा भी आइडिया है थोड़ा सा। मैं एक्चुअली अभी फुल टाइम सिंगली हैंडल कर रहा हूँ। इनकेस कल को अगर काफी अच्छा ग्रो दिखेगा तो उसको करेंगे। एक्चुअली उसमें सारा का सारा स्ट्रीट वेंडरिंग, और ये जो अब हम देखते हैं गली गली कुलचों में जो बेचारे छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, जो अपना छोटी छोटी चीजें करते हैं, वो कितना सफर करते हैं। जब जैसे ओएनडीसी वगैरह जैसे आएगी, इंडियन गवर्नमेंट एक ओएनडीसी प्रोग्राम लॉन्च करने वाली है, ऑनलाइन डिजिटल कॉमर्स। उसमें क्या होता है कि आप, सरकार दे रही है, जैसे हमारे को यूपीआई दिया है ना मैम, सरकार ने यूनिक यूनिक पेमेंट जो दिया है अभी, उसी की तरह यूएनडीसी भी दिया हुआ है। तो उसी से रिलेटेड कुछ हमारा रहेगा इन फ्यूचर। फ्यूचर में आपको से डिस्कस जरूर करेंगे। यस। जी जी सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, दैट्स वेरी नाइस। यस ये सर, आप ये सब हमें बताकर आप हमको इंस्पिरेशन भी दे रहे हैं कि भाई ऐसा भी कर सकते हैं, अगर वो ना चली तो ये चलेगा। कुछ ना तो स्किल है मेरे पास, आईटी स्किल्स है, और मेरे थोड़े ड्रीम प्रोजेक्ट्स भी है। तो यस मैम। इट्स रियली नाइस। आप तो एक इंस्पिरेशन हो गए हमारे लिए, लेकिन थैंक आपकी यू। जिंदगी में आपका इंस्पिरेशन कौन था सर? आप इस हद एक्चुअली तक आए हैं एक छोटी सी गांव से, तो आपका इंस्पिरेशन कोई ना कोई तो होगा। तो हु इज दैट? बिल्कुल था, बिल्कुल है मैम। मेरे फादर ही मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन है।
और सबसे बड़ा हर्डल भी उन्हीं से मैं सीखा हूँ, उनके हर्डल से भी मैंने काफी कुछ सीखा है। और अभी भी मैं उनको खुश करते करते आधी जिंदगी निकल गई है। उनके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना ही मेरा एक वो रहता है, चाहे मैं पसंद करूं चाहे ना करूं, उन्होंने जो बोल दिया वो करना पड़ेगा। और इंस्पिरेशन इसलिए है क्योंकि उन्होंने पूरी फैमिली को सिंगल हैंडेडली हैंडल किया है। और एक गांव से एक बच्चे को, जिसको रेडियो के जमाने में देखना है, एक वॉकी टॉकी और वो ये क्या नाम वॉकमैन वाले जमाने में मेरे को फोन दिलाना, मेरे को आईटी इंजीनियर बनाना, वो सब उन्हीं को हेड्स ऑफ है। और उन्हीं से मैं यही सीखा हूँ कि मैं, मेरा भी एक लड़का है तो मैं भी उनको, और मेरे जो यंगस्टर भाई हैं, भाई बहन हैं वगैरह हैं, तो एक्चुअली उनको भी मैं यही गाइड करता हूँ कि भैया जो भी करो, अपने पेरेंट्स की वैल्यू को, आपको गुस्सा आता है, आप हाइपर होते हैं क्योंकि वो एक टाइम पे आपको अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड चीजें करनी होती हैं, और फादर मदर ये चाहते हैं कि आप इंजीनियर बनो, आप डॉक्टर बनो, लेकिन आप बनना चाहते हो एक क्रिकेटर या फिर कोई स्पोर्ट्स पर्सन, वो सब आप पोलाइटली हैंडल करें। एक्चुअली मैं बीटेक इंजीनियर बनना चाहता था, फादर ने कभी ये अपोज नहीं किया कि आपको बीटेक इंजीनियर नहीं बनना, या फिर आपको, हाँ एक चीज में अपोज किया उन्होंने कि बिजनेसमैन नहीं बनना, तो मैंने उनकी बात को ओबे किया। मैं ठीक है पापा, आप बोल रहे हैं बिजनेसमैन नहीं बन पाऊंगा मैं, जिस दिन मेरे को लगेगा आपको प्रूव कर सकता हूँ, उस दिन दोबारा ज्वाइन कर लूंगा, नहीं तो मैं बीटेक इंजीनियर तो बन सकता हूँ। बोला हाँ आप वो तो हो ही। मैं ठीक है, मैं कर लेता हूँ। तो बस जस्ट यंगस्टर को यही बताना चाहूंगा कि कुछ समय देना होता है चीजों को। अगर नेगेटिविटी आ रही है आपके आपके अचीवमेंट्स ऑब्जेक्टिव्स में, तो उसको थोड़ा सा हैंडल आप कीजिए। किसी को नाराज करके आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। और खास तौर पे माँ बाप तो भगवान है, उनको जितना आप अच्छा, वो आपके भले के बारे में ही सोच रहे हैं, उन्होंने आपको पाला है पोसा है। अगर वो बोल रहे हैं कि आप बिजनेसमैन क्वालिटी के नहीं हो, तो हो सकता है वो नहीं भी हो आप। जी जी। आपने यस सर। बहुत अच्छी बात कहा कि भाई पेरेंट्स नो बेटर देन अस। अपने हमारे माँ बाप जो है उन वो भगवान जैसे हैं और सच भी जानते हैं थोड़े कि भाई आप उस सेक्टर में नहीं जा सकते क्योंकि आप उनके यस इसके लिए नहीं बने हो आप। यू नो यस सर। हमेशा माँ बाप के आशीर्वाद के साथ ही हम लोग आगे जाना है यस सर। और उनके यस सर। बातें भी सुनना है। तो और एक बात आपने कहा कि भाई हैंडल विथ केयर, यस सर। नरमी से पेश आए जब माँ बाप से बात करते हैं। यस सर। डोंट स्पीक हार्शली, दैट्स रियली वेरी नाइस। तो यस आजकल बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप को इतना सम्मान देने का सोचते हैं। नो जस्ट दे रफ एंड टफ, ले लिए खत्म हो गया। तो गिव बैक एटीट्यूड नहीं है आजकल के बच्चों में। लेकिन आपके मन में जो भावनाएं हैं माँ बाप के प्रति, दैट इज रियली वेरी नाइस। बहुत अच्छा से। एक्चुअली मैम भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है ना। जी जी। अब हम जिनको रिस्पेक्ट करते हैं, अगर उन्हीं की रिस्पेक्ट में अगर कमी रह गई तो फिर भगवान को क्या रिस्पेक्ट देंगे? जी जी, दैट्स ट्रू। यस वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सर फॉर शेयरिंग, दैट्स रियली वेरी यस नाइस। सर। यस डियर सर, कोई ऐसा बुक है जो आप पढ़े हैं और हमको आज बताना चाहेंगे कि भाई ये बुक मैंने पढ़ा, अच्छी बुक है, आप भी पढ़ लीजिए। ऐसा कोई बुक हिंदी में या इंग्लिश में, एनी कोई एक्चुअली भी मैं language। इतनी बुक्स के बर्डन में रहे हैं एक्चुअली, पॉलिटिक्स या सोशली या फिर कोई पोएट वगैरह इन तरह की चीजों में कभी इंटरेस्ट रहा नहीं है। तो ज्यादा तो एक ही चेतन भगत की एक बुक थी, थ्री इडियट, पे मूवी बनी है वो, थ्री मिस्टेक इन माय लाइफ, वो एक दो थोड़ा बहुत पढ़ा है। एक आध बुक और छोटी छोटी पढ़ी है, लेकिन ज्यादा कुछ इंस्पिरेशनल बुक्स वगैरह के मामले में ज्यादातर टेक्निकल रहा है जी कि जी क्या करना है कैसे करना है, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू में जस्ट बता सकते हैं। जी जी, दैट्स रियली यस नाइस, वेरी यस नाइस, थैंक यू सर। यस। भाई साहब, अगर आपको इस दुनिया को आपको याद करनी है, ये दुनिया हम्म। किस बात के लिए आपको याद करनी है और क्यों याद करनी है? वाई डू पीपल रिमेम्बर यू एंड फॉर व्हाट? किस चीज के लिए हमें आपको याद करनी है? मैम देखिए, फेमस तो हर कोई बनना चाहता है, मतलब इन द सेंस याद करने वाली, याद करने रखने लायक चीजें तो हर कोई चाहता है। लेकिन अगर इन केस अगर मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ जिससे लोग मुझे याद कर पाए, तो वो मैं यही करना चाहूंगा कि जो स्ट्रीट वेंडरिंग का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसको मैं ऑर्गेनाइज्ड वाया अपने डिजिटल और अपनी जो आईटी सेक्टर की जो स्किल सेट है, उसको यूज करते हुए, मेरा पीओसी तैयार है, तो मैं उसी को उसी से याद करवाना चाहूंगा मैं।
कि हाँ इसने बिना, क्योंकि मैं एक्चुअली मेरे को ऑफर्स भी आए थे अपने पीओसी एज ए कॉर्पोरेट सेक्टर को पेश करने का। तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि पीओसी अगर आप प्राइवेट सेक्टर को दोगे तो वो अपना प्रॉफिट निकालने के चलते जिनको आप प्रॉफिट देना चाहते हो वो प्रॉफिट नहीं दे पाओगे, क्योंकि वो ऑन द स्केल ऑफ उस पर वर्क करते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है और प्रॉफिट क्या है। इसलिए इसी से याद करवाना चाहूंगा कि इन केस कल को अगर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कुछ अच्छा सा और कर पाए तो उन्हीं से याद रखा जाओ। ये सब। थैंक यू फॉर शेयरिंग भाई साहब, थैंक यू वेरी मच, ये थैंक्स। सब। भैया, आपके अंदर आप खुद, ये मेरा गुण है, ये मैं हूँ, ये मैं हम्म। परवीन मलिक हूँ, ये गुण मुझ में है, मुझे पसंद है ये गुण, मैं कौन हूँ, मुझे पसंद है। व्हाट इज दैट क्वालिटी, वो कौन सी गुण आप में जो आप आइडेंटिफाई कर चुके कि ये गुण मुझ में है और मुझे अच्छा लगता है। मैम इसमें तो यही मानूंगा कि जो मेरे को सामने बोलना होता है, चाहे मेरे सामने मेरे एमडी खड़ा है मेरी कंपनी का, या मैं कहीं सेमिनार में कर रहा हूँ, मुझे जो बोलना है, इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश, हिंदी बोलना तो हिंदी, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। मेरा मेरी यही क्वालिटी मेरी हर्डल्स हैं, यही क्वालिटी मेरी स्ट्रेंथ है। क्योंकि जो मुझे बोलना होता है मैं मुंह पे बोलना होता है, और जैसे बोलना है वैसे ही बोलना है। किसी को अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए माफी मांग लेते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट में तो थोड़ा माफी भी मांगनी पड़ जाती है, अरे सर सॉरी। तो जस्ट यही मेरी क्वालिटी मैं अपने आप में पहचान पाया हूँ। कभी ग्रेट। किसी चीज से डाउन होना ही नहीं है, बुरा नहीं लगना कि हाँ क्लाइंट ने ये बोल दिया तो आप ये कर रहे हो, नहीं, नो इशू, सॉरी सर, जस्ट। जी जी, वो बहुत अच्छी बात है, दैट्स वेरी नाइस। नरमी से पेश आना, फ्रैंक भी रहना, सच्चाई भी यस। बोल देना, अगर उनको यस। अच्छी नहीं लगी तो माफी भी मांग लेना कभी कभी, दैट इज वेरी नाइस। अभी रिसेंटली अगर आप अलाउ करें तो एक एग्जांपल हुआ भी था मेरी लाइफ में। एक्चुअली एक हमारे स्टार्टअप रिसेंटली कोरोना के जस्ट बाद, बिल्कुल छोटा सा पीओसी, और आज आप शायद नाम जान भी चुके होंगे, फ्रॉम विच सिटी यू आर बिलोंगिंग डजंट मैटर, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया you want to spread something. The app name is Nakoda DCS. ओके। और छोटा सा प्रोजेक्ट था, तो मैंने सर को बोला, मैं सर आप आए हैं, आप इतना लंबा विजन है आपका, तो मुझे कहीं ना कहीं आपका सबसे बड़ा कंपटीटर अर्बन क्लैप, जो नाम की अर्बन कंपनी जिसका नाम आपने सुना होगा, तो बोलते हैं प्रवीण जो बोले ना सामने बोलना भाई, बताओ क्या करना सही रहेगा। तो मैं सर अगर आपको अच्छा करना है तो इसको उससे हटका करना पड़ेगा। तो उनको मैंने काफी कमियां उनकी बताई, तो उन्होंने माना भी। और आज उनका ये मान लो कि इतने जायंट को कंपटीटर देते हुए वो 1.5 लाख डाउनलोड अपना करा चुके हैं। अब उन्होंने ये मान लीजिए दिवाली तक की बुकिंग क्लोज करनी पड़ी, इतनी बुकिंग्स उनके पास ऑलरेडी हैं। तो वो हर बार मेरे को ही क्रेडिट देते हैं, क्योंकि उसका सारा का सारा सॉफ्टवेयर का पूरा मेरे अंडर ही था। तो ऐसे ही 3 4 क्लाइंट और भी थे यूएसए वगैरह की। तो उनसे मैंने यही सीखा कि जब वो गुस्से में होते थे और मैं उनको मनाने की कोशिश करता कि सर आप गलत कर रहे हैं, तो नहीं मानते थे, तो मैं ओके सर जैसा आप चाहें, कमियां पहले लिख के भेज देता था, सर ये करवा रहे हो आप, इससे होगा नहीं, प्रॉब्लम आएगी आपको, लॉस होगा आपका, होगा हमारा नहीं होगा। लेकिन हमारा पहले बताना सही रहेगा कि इस तरह की अगर टेक्नोलॉजी में आप चीजें करोगे, आप एक्सपेरिमेंट करोगे, तो एक्सपेरिमेंट से यूजर इंटरफेस खराब होगा आपका। तो जस्ट इसके चलते फिर यही होता है मैम कि बेइज्जती आपको लगती है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब उनको एनालाइज होता है कि हाँ यार लड़के ने सही बोला था, उनको लॉस होने से बचा था काफी लंबा चौड़ा, तो फिर उन्होंने मेरे को बुलाया, स्पेशली इनवाइट किया, फिर बैठा के, क्योंकि उस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम समथिंग लाइक चीजें चलती थी। तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ यार तुमने बचा लिया मेरे को। उस टाइम पे तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, मैं $1 मिलियन की सपने देख रहा हूँ और आप बोल रहे हो कि लाख रुपए की सोचो पहले सर। 1 मिलियन बहुत मुझे डिमोटिवेट लग रहा था। मैं सर फिर वो अपने चीजें समझी की, और एक्चुअली वो आईटी से ही इंडस्ट्री से रिलेटेड थे। तो वो मेरे एक किस्म से मान लीजिए अपर लेयर्स होती है मैम आईटी में, कि आप किस में आईटी बोलने में अगर आप देखते हैं, डिजाइनिंग करने वाला भी आईटी इंडस्ट्री का ही पार्ट है, डेवलपमेंट करने वाला भी, कंप्यूटेशन करने वाला भी, ऑटोमेशन करने वाला भी, और एथिकली वर्क करने वाला भी, जैसे कि आपकी
मान लीजिए आपका हैकिंग वगैरह है, साइबर सिक्योरिटी, और ये सब चीजें मतलब फील्ड्स इतनी ज्यादा है आईटी में कि नाम आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसमें ह्यूज विजन्स हैं, फ्यूचर है, हर तरीके का, और जैसा इंटरेस्ट है इंसान का वैसा फील्ड को चूज कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आज के टाइम आप देख रहे हो काफी फेमस हो रहा है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों से है मैम आगे। अप टू यू। दैट्स रियली नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। भाई साहब, आपको छुट्टियां मिल जाती है? अगर मिल गई तो कहाँ जाना चाहेंगे आप? आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? बस काम ही में लगे रहते हैं या थोड़ा सा टाइम आउट भी लेके जाते हैं कहीं फैमिली को लेके? एक्चुअली मैम छुट्टियां मिलती भी है, बहुत ज्यादा भी मिली है, और ये सब हुआ भी है, कोरोना के टाइम में भी हुआ है। और ऐसा नहीं है कि टाइम देना नहीं चाहते, लेकिन बच्चा भी है एक छोटा, उसको भी संडे में कभी काम नहीं करते हैं। संडे में सिर्फ फैमिली और बच्चे के लिए ही रहता है। तो बाहर जाने के लिए तो देखिए चाहता तो हर कोई है कि अपने परिवार को ऐसे सपने, जो भी उनके सपने हैं पूरा किया जाए, लेकिन जितना पॉसिबल होता है उतना करते हैं। लेकिन इन केस अगर अच्छा कर पाए तो पूरे परिवार को, माता पिता को, बच्चों को, बीवी को, सबको ही अच्छे से एक धाम वगैरह पे, धार्मिक परिवार वाले, ना कि मैं, लेकिन उनके खुशी के लिए उनको एक तीर्थ स्थान पे पूरी फैमिली के साथ में लेके जाना चाहूंगा। जी जी जी, वेरी नाइस। जरूर ले जाइए सर, इट्स वेरी नाइस। अच्छा भी होगा यस हो जाके, आने के बाद दोबारा आइए हमारे मंच पर और बताइए कि भाई कैसा था वो सब। यस मैम, यस मैम, यस, दैट्स बिल्कुल। रियली नाइस। यस मैम। भाई साहब, आप जब स्कूल और कॉलेज में थे, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखा करते थे? यस मैम, रखते थे। एक्चुअली मैं 11 12 तक तो मेरा वो रहता था कि मेरी साइकिलिंग रहती थी मॉर्निंग में, क्योंकि मैं 11th में अपना सिटी मेरा रहता है 10 किलोमीटर मेरे गांव से। तो मेरे बैचेस वगैरह होते थे तो साइकिलिंग करके जाना होता था। तो उससे मेरी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही था, स्कूल टाइम में भी। लेकिन बर्डन हमेशा टारगेट रहा है एजुकेशन की तरफ। स्पोर्ट्स से अगर मेरी एजुकेशन डिस्ट्रैक्ट हो रही है तो मैंने स्पोर्ट्स छोड़ दिया है। जैसे पहले स्टार्टिंग में मैंने क्रिकेट छोड़ दिया था, फिर मेरी साइकिलिंग का और रनिंग का इंटरेस्ट बना। मैं यूनिवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए गया हूँ 5000 मीटर में, 10,000 मीटर में, और मैंने दिल्ली मैराथन और चंडीगढ़ मैराथन भी, हाफ मैराथन में भी पार्टिसिपेट किया था। और उसके लिए मैं डेली अपना प्रैक्टिस भी करता था और बीटेक के टाइम पे पढ़ाई भी करता था। लेकिन कुछ चीजें मेरे को यही लगा कि यार जिस पर्पज के लिए आप आए हो, जिसके लिए घर वालों ने, परिवार वालों ने पैसा लगा रखा, उनकी इच्छा है कि बीटेक इंजीनियर बने, बट हमारा, क्योंकि मैं पहला इंजीनियर था मेरे परिवार में जो बना हूँ, ग्रेजुएट भी पहला ही हूँ और बीटेक इंजीनियर भी पहला ही हूँ। हाउ तो नाइस। यस, तो मैंने कुछ चीजें अपने यही सोचा कि देखो यार, अगर अच्छा कर सकते हो तो पापा को मनाऊं मैं कि हाँ मैंने मैराथन जीत ली एक बार, और नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो मैं सोचूं कि हाँ पापा को मनाऊं, पापा मैं बीटेक को साइड प्रायोरिटी पे रखता हूँ और फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये रहेगी। तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा, तो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी बीटेक को ही रखा। यस मैम। वेरी नाइस। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग, थैंक यू थैंक यू सर। यस सर। इस दुनिया में आप कौन सी बदलाव लाना चाहेंगे? कहाँ पर बदलाव आपको दिख रही है कि भाई इस एरिया में बदलाव लानी है और मैं वो बदलाव लाना चाहूंगा? कौन सी एरिया है वो सर? मैम, स्टार्टिंग से ही जब टॉक ज्वाइन किया तभी से मैं शायद टॉकी पर्सन हूँ, आधी सी चीजें आपको पहले ही बोल चुका हूँ। मैं स्ट्रीट वेंडरिंग का जो कॉन्सेप्ट है अपना एक पीओसी बना के बैठा हूँ, जिसको मैं किसी को अपने लेवल पे सेट कर रहा हूँ। तो उस पे क्या है कि मैं उससे ये ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ जो ऑर्गेनाइज मार्केट है, क्योंकि हमारे, आप देखते होंगे कि हम स्ट्रीट पे जब जाते हैं सिटी में या मेट्रो सिटीज में भी, आप देखेंगे, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली के आसपास के एरिया में, तो दिल्ली में तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज मार्केट होती है। वहां पे आप जितने भी फेरी वाला समथिंग घूम रहे होते हैं, ना गवर्नमेंट के पास उनका कोई रजिस्टर्ड नंबर होता है। ठीक है, गवर्नमेंट अभी भी वर्क कर रही है ऑटो रिक्शा वालों को रजिस्टर करते हुए, हर छोटी छोटी सिटीज में, हरियाणा में काफी प्रोग्रेस पे है कि किसी प्रकार का क्राइम ना हो, किसी प्रकार की कोई मिस हैपनिंग ना हो। तो इस तरह की चीजें उनको खुश रखते हुए, क्योंकि वो है ना एक अनएजुकेटेड पीपल है,
उनसे अगर आप डायरेक्टली आप बोलें कि सॉफ्टवेयर है ये और इससे आपको ये फायदा होगा, तो वो समझेंगे। अगर उनको ये बोलोगे कि आपके लिए भी अच्छा है, आपके आसपास में कस्टमर्स हैं उनके लिए भी अच्छा है, तो उस चीज के लिए वो अच्छे से तैयार नहीं हो पाएंगे। तो यही बदलाव मैं लाऊंगा कि कंपनीज के थ्रू ना करके एक डायरेक्ट अपना एक पीओसी गवर्नमेंट को पेश करूं और उसको ये दूं कि सरकार के पास ये रहे कि ये फेरी वालाज हैं, ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं, और इनको ये ऐसे ऐसे ट्रैक किया जाएगा और इनकी गवर्नमेंट इस तरीके से पीसीसी करेगी, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह करेगी, जिससे आपका पूरा रिकॉर्डेड रहे। क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि पिछले 15-20 साल से हमारा आधार कार्ड बन चुका है। ठीक है, आधार कार्ड में हमारे पास बायोमेट्रिक भी होती है, हमारे पास थंबिंग भी की जाती है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हमारा क्राइम रेट, फोरेंसिक वाले और ये सब भी हमारा ट्रैक नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमारे उसके लिए ऐसा इकोसिस्टम चाहिए जो इंडियन गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा ट्रिकी टास्क है, जो दूसरी गवर्नमेंट भी कर सकती है लेकिन कर नहीं पाती है, जस्ट फॉर पॉलिटिकल एंड समथिंग लाइक, जो चीजें मुझे समझ में नहीं आती है। तो यही बदलाव मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट अगर इनिशिएट करेगी किसी चीज को, तो अगर नहीं करेगी तो उसका भी अल्टरनेट पहले से डिसाइडेड है मैम, विदाउट प्रॉफिट, जस्ट फॉर जस्ट फॉर फेरीवाला पोर्टर्स ट्रीट करूंगा। अगर इनिशिएट करेंगे तो उसको गवर्नमेंट प्रोस्पेक्टिव में भी एज ए सिक्योरिटी कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि आप अपार्टमेंट में हैं एज ए लेडीज, और आपने नीचे से सब्जी वाले को, भाजी वाले को बुलाया, आपकी बच्ची अकेले है, मतलब आपको बता रहे कि हाँ यहाँ ये ट्रैकिंग है कि मेरे अपार्टमेंट के बाहर कौन आया था, कब आया था, कितने बजे आया था। उसकी ट्रैकिंग सिस्टम अगर गवर्नमेंट इनिशिएट करेगी तो वो ज्यादा अच्छे से मैनेज हो सकती है। लेकिन एक फाउंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू इतना लंबा चौड़ा करना बहुत मुश्किल होता है, सॉरी। तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन देखते हैं सॉल्यूशन सभी रेडी कर रहे हैं, पीओसी पे चीजें चल रही हैं। यस सर, ठीक है। That's really nice, sir. Thank you for sharing all of that. Wonderful, यस sir. सर, ये यस सर सर। आपके कोई बेस्ट फ्रेंड्स है, उनके नाम बताना चाहेंगे कि भाई हाँ ये हमारे फ्रेंड्स थे और अभी भी हैं हमारे साथ, हमारी ताकत बने हुए हैं, ऐसे कोई है? सर मैं एक्चुअली मेरा कभी से वो दोस्त बनाने का रहा है कि जो दोस्त है ना मेरी लैग पुलिंग करे और मेरे को मोटिवेट करे और डिमोटिवेट भी करे। मतलब मेरा एक दोस्त है ऋतिक, जो कि हमेशा काफी टॉकी पर्सन है, मेरे से भी ज्यादा है, और वो मुझे बोलता है कि यार थोड़ा सा दिमाग लगा, ऐसे कर वैसे कर। उसको वो इंस्पिरेशन भी बनता है और मेरी लेग पुलिंग भी करता है। तो मेरे को जब खींचना होता है उसको तो वो खींच देता है। तो ऐसे ऐसे दोस्त मेरे काफी हैं जो 15-20 साल से मेरे यार दोस्त रहे हैं। कभी मुलाकात होती है तो साल 6 महीने में जरूर होती है, और डेली बेसिस के तो यार दोस्त रहते ही हैं मैम, प्रोफेशनल लाइफ है। यस। जी जी, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग सर। यस सर। डियर सर, एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या यूथ लोग जो है अभी अभी जो कमाने लगे हैं, जो बच्चे जस्ट यस सर। कंप्लीटेड ग्रेजुएशन एंड स्टार्ट वर्किंग, क्या उनको रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स अभी से स्टार्ट करनी है, या थोड़े से दिन पैसे पूरा उड़ा दे फिर एक 5-10 साल के बाद रिटायरमेंट का सेविंग्स शुरू करे? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए मैम, रिटायरमेंट के लिए अगर आप अभी से सोचने लग जाते हैं तो आधी से ज्यादा चिंता तो आपको वैसे ही होने लग जाएगी। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप ये सोचते हैं कि प्राइवेट सेक्टर आपके पास है, कल को अगर आप अर्निंग बंद हो जाती है 40 के बाद, अगर कोई आपको हायर नहीं करेगा, क्योंकि मैं अभी करंटली 34-35 का ही हूँ, ठीक है, तो अब 35 के बाद कोई हायर नहीं करेगा या ये नहीं करेगा, तो फादर नहीं देंगे, मदर नहीं देंगे, बच्चे हो जाएंगे, बच्चों को भी कुछ करके देना है, तो वो सब टेंशन्स तो ऑब्वियस सी बात है, लाइफ है, लाइफ के साथ रहेगी। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं 21 एज पे, एज ए यंगस्टर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको वरी करना ही नहीं चाहिए। जस्ट आपको ये करना है कि मेरे को 3 साल के अंदर ये स्किल अप कर देना है, 3 साल के अंदर बाउंडेड नहीं रहना है। क्योंकि शादी से पहले जो आप काम करते हो बाउंडिंग रहते ही नहीं हो। शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, बच्चे हैं, बच्चों का ख्याल रखना है, माता पिता की तरफ से भी बर्डन बढ़ जाता है कि हाँ यार पोते को ये करवाओ, वाइफ को ये करवाओ, ये सब चीजें। तो मैं फ्यूचर वाला जनरेशन को तो यही बोलूंगा, क्योंकि सर मैम आज के टाइम बच्चे नहीं पसंद करते किसी
पर्टिकुलर अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो उनको लाइफ एंजॉय करने के लिए बोल दो। बोलो कि 25-26 तक अपना सेटलमेंट कर लें, अपना इंडस्ट्री सेट कर लें, उसके बाद अपना 25 के बाद शादी करनी है आपको, 30 तक करनी है, कर लो, नो इशू। लेकिन रिटायरमेंट के लिए आपको रखना है तो रिटायरमेंट अपना एक लॉन्ग ऑब्जेक्टिव पहले रख लो, अभी मत सेव करो, लेकिन ऐसा रनिंग रिकरिंग सेट करो कि आप काम करें चाहे ना करें, फिर भी आपके पास कुछ आए, जो कि अभी तक हम भी नहीं कर पाए। लेकिन बोलना, देखिए मैं तो यही अपना है जो मैं अपना रखता हूँ, वही मैं अपने यंगस्टर्स को बताऊंगा कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर आप बीमार हो लेकिन आपकी अर्निंग बीमार नहीं होनी चाहिए। आप बहुत जेन्युइन इंसान हो सर, आप बहुत जेन्युइन हो, सच्चे दिल के हैं, जो है सो सच्चाई आप शेयरिंग कर रही हो। दैट्स वेरी नाइस। यस यस डियर। मैम। डियर सर, आपको कभी कभी गुस्सा भी आ जाता, कभी कभी स्ट्रेस मैम की वजह से? मैम, जिस दोस्त का नाम मैंने लिया है ना, वो मेरे को यही बोलता था कि आप बहुत हाइपर हो भाई। ठीक है, बोला हाइपर। हाइपर मैं इतना ज्यादा था मैम कॉलेज टाइम में कि मैं किसी की सुनता नहीं था, सिर्फ सुनता था फादर की सुनता था। अब फादर तो मेरे पास थे नहीं, क्योंकि मैं बीटेक मेरा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से था, मैं बिलोंगिंग रोहतक से। तो उन सब चीजों में मैम यही सीखा कि अपने आप को, एग्रेशन को, उस एग्रेशन को मोल्ड कर दिया जाए, उस एग्रेशन को एक इफेक्टिव वे में, वो सीखा है। और थोड़ा बहुत परिवार की जिम्मेवारी को समझते समझते इतना थोड़ा मेच्योरिटी आ ही जाती है इसके अकॉर्डिंग, आप अच्छे से जानते हैं। जी जी और समय बहुत कुछ सिखा देता है। जी जी। यस मैम, समय Very बहुत कुछ सिखा देता है। यस मैम, थैंक यू। nice। भाई साहब, अगर आप सॉफ्टवेयर सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं होते अभी, तो क्या होते, क्या बनते थे आप? अगर एक्चुअली आईटी फिर फील्ड मैं में ना उतरते, तो क्या, व्हाट एल्स नेक्स्ट? एक्चुअली अगर मैं नहीं होता तो पहला तो, अगर मैं बीटेक कर ही नहीं पाता या बीटेक होता ही, तो उससे पहले तो मैं फिर एक स्पोर्ट्स पर्सन होता। और स्पोर्ट्स पर्सन लॉन्ग रनिंग में मैं जरूर होता। लेकिन उस टाइम पे फिर मेरे को एक हेल्थ इशू हुआ था, तो उससे मेरे को समझ में आया था कि मेरी हिरार्की में, मेरी जेनेटिक में मुझे कुछ चीजें दिखाई दी, तो मैं भैया सफर करना दिक्कत करेगा। तो वो था, फर्स्ट ऑप्शन तो वो था मैम। और सेकंड ऑप्शन है बिजनेसमैन बनना, जो कि अभी तक नहीं बन पाए हैं लेकिन बनते हैं। बन यस जाएंगे मैम। आप, बन जाएंगे। आपके इरादे नेक है, आप बड़े साफ दिल के हैं, बड़े कि मैम बिजनेस में साफ दिल नहीं चलता ना मैम। यस, इसीलिए तो मैं, इसीलिए आप, यू नॉट एबल टू गेट, थोड़ा में इसमें चतुराई रहना, थोड़ा सा स्मार्टनेस रहना, तभी तो बिजनेस चलेगी। बड़े साफ दिल नेक दिल इंसान है ना, तो दे कैन नॉट। फिर भी आप इसीलिए। कोशिश कीजिए, आपका जो दिल में जो अच्छाई है, डेफिनेटली यू विल बिकम अ ग्रेट बिजनेसमैन, यू ट्राई दैट। यस। यस मैम, एक्चुअली इसीलिए फादर ने बोला था बेटा तू रहने दे। ये चीजें थोड़ा सा बोला, थोड़ा स्ट्रेटेजी होती हैं इन चीजों हाँ में। आप बोला आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आपको कोई ठग ले जाएगा। जी जी हाँ। यस। तो आजकल जो है, लोग सभी लोग दूसरों को नीचे डाल के फिर उन लोग अपने ऊपर चढ़ना चाहेंगे, दे वुड लाइक टू कम अप। तो उसके लिए हम यस भी तैयार रहना, लड़ने के लिए, मेंटली स्ट्रांग एंड फिट टू फेस ऑल द चैलेंजेस। मैम, एक्चुअली ये सब चीजें तो लाइफ सिखा भी देती है। जी अगर आप उसको ये सोचो कि आपके जूनियर ने तो अपने एक फर्म स्टार्ट कर दी, आपका जूनियर तो वहां पे ये काम कर रहा है, आपका साथ वाला ये काम कर रहा है, उन सब चीजों से डिमोटिवेट होना ही नहीं है, मैं भी नहीं होता। जी और कभी कभार होता भी हूँ तो फिर वाइफ भी थोड़े काफी कोऑपरेटिव हैं, तो वो भी बोल देते हैं आप अपने टैलेंट पे ध्यान रखो, अपने उस पे रखो, हम खुश हैं ना, जो आप कर रहे हो हम खुश हैं। कल को अगर कुछ करोगे तो हमारे लिए ही करोगे, नहीं कर पाओगे तो हम इसमें खुश हैं। तो उनका ये कहना रहता है, पॉजिटिविटी उनकी तरफ से भी काफी रहती जी जी जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। है। भाई साहब, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? एक्चुअली फेवरेट कलर तो अभी जो पहना हुआ ब्लू और ब्लैक यही रहता है। ओके, जैसे दैट्स नाइस, वेरी नाइस। जब आप स्कूल में थे तो आपको कौन से सब्जेक्ट में आपका एक्चुअली मैं इंटरेस्ट? मैथमेटिक्स में मैं काफी अच्छा बोलते थे, टीचर्स भी था भी, लेकिन मैं कभी अच्छा स्कोर नहीं कर पाता था। मेरा स्कोर मेरे यार दोस्तों के लिए काम आता था, मेरे लिए नहीं।
एक्चुअली एट ए टाइम मेरे को कुछ चीजें ऐसी हो जाती थी फैमिली में, एक्चुअली इमोशनल पर्सन काफी था। अभी तो मैं चीजें आईटी इंडस्ट्री में हूँ, तो इमोशनल रहा तो फिर तो नहीं बात बनेगी। तो टाइम टू टाइम इम्प्रूव किया है अपने आप को। लेकिन जब स्कूल कॉलेज टाइम में मम्मी बीमार हो गई या कुछ और हो गया, तो मैं इतना मतलब इमोशनली टच हो जाता था कि फाइनल टाइम में मैं स्कोर कर ही नहीं पाता था, एक एवरेज स्कूल एवरेज ही रहता था। लेकिन मैथमेटिक्स मेरा आज भी ये है कि अगर कोई पूछे कि 15-20 साल पहले अगर +2 में आपने मैथमेटिक्स किया है, कुछ सिखा दो, तो आज भी हो जाएगा। तो बेस तैयार था उसका। बेस। और अगर किसी को आईटी फील्ड में आना है तो दो ही चीज होती है मैम, यंगस्टर्स के लिए एक मैसेज है। जी। अगर आईटी फील्ड में अगर आपको आना है, जरूरी नहीं आपका अच्छा मैथ हो, जरूरी नहीं आपकी अच्छी इंग्लिश हो, जस्ट इतना जरूर हो कि आपको पहले से विजन तैयार हो और आप प्रॉब्लम्स को समझें और प्रॉब्लम सॉल्वर बने। वो मैटर करता है। आज के टाइम किसी को कुछ नहीं मतलब है आपको क्या लिखा है, क्या पढ़ा है, क्या नहीं है। बस उनको जरूरत है मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कौन कितना जल्दी सॉल्यूशन देगा, उसके पैसे हैं। अगर उसने उसके पास क्वालिफिकेशन है दुनिया भर की और वो सोल्व नहीं कर पाता है, तो उसकी कंसिडरेशन नहीं है मार्केट में। तो यंगस्टर को यही कहूंगा कि मैथमेटिक्स को हवा ना बनाए, क्योंकि प्रोग्रामर्स के लिए यही सोचता है कि प्रोग्रामर से पहले मैथमेटिक्स आना चाहिए। खासतौर पे लड़कियां लड़कियां क्या सोचती हैं कि प्रोग्रामिंग में लिखना पड़ता है, मैथमेटिक्स होता है, फिजिक्स होती है। लड़कियों को पसंद होता है थोड़ा हिस्टोरिकल एंड बायो समथिंग, जिसमें फॉर्मूलेज रटे जाएं। ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा कि समय से यही चीजें सीखनी है मैं कि मैथमेटिक्स मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है मैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट मैसेज। शुक्रिया भाई साहब, क्योंकि अच्छी सी मैसेज आपने दिया। अगर प्रोग्रामिंग करनी हो तो मैथमेटिक्स की नॉलेज रखनी है, तो if it is the girls or the boys, they need to work on mathematical skills and of course be updated and get all the best qualities as a human being and as a professional as well. भाई साहब, आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस। एक अच्छा मुहावरा सुना दीजिए, या इंग्लिश में बोलते हैं एक अच्छा सा कोटेशन, शेयर अ कोटेशन विद अस। मैम एक अच्छा सा, अगर ऐसा लेट मी जस्ट हेल्प यू, हिंदी में ऐसे बोल देना, हाउ डू आई से दैट नाउ, एक्चुअली इसीलिए वन लाइनर, मैंने वन लाइनर, एक अच्छी सी वन लाइनर, एक मुहावरा दे से। तो अच्छी सी मुहावरा, मुहावरा जो आपने अपने मम्मी डैडी से सीखे हो या अपने दोस्तों से, कि भाई जिंदगी में ये बार बार फॉलो करने का, जैसे हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वैसा, ऐसा कुछ यू वुड लाइक टू एक्चुअली मेरे फादर बोलते हैं, लेट लेट गो लेट बी गोन। वो बोलते हैं जो हो गया उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। वो वाह। एक्चुअली बोलते रहते हैं। उनकी एजुकेशन तो काफी थी, लेकिन उन्होंने काफी बोलते रहते हैं ये चीजें। तो काफी टाइम पुराने जमाने के पढ़े हुए हैं, ज्यादा पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत इंग्लिश बोल लेते थे। तो वो दो दो चार इंग्लिश के वर्ड जो बोले थे वो हमें भी आज भी याद है। जो हुआ सो हुआ, तो आगे जाइए, डोंट स्टॉप, गो Yes, अहेड, yes, दैट्स yes, रियली don't नाइस। be wrong. Yes, sir. वंडरफुल। भाई साहब, आप इतना सब हासिल कर चुके हैं, इतना तक, इतने दूर आ चुके हैं आप, एक छोटे से गांव से यहाँ तक पहुंचे हैं आप। तो आप सब में से सबसे खूब अचीवमेंट कौन सा है? हाँ भाई, मैंने बीटेक कंप्लीट करा, अच्छा लगा, अभी मेरे को जॉब जॉब लगी है, अच्छा लगा, मैं कुछ डेवलप कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा। तो सबसे प्राउडेस्ट, अच्छा फीलिंग वाला कौन सा टाइम है? व्हाट इज दैट टाइम? अच्छा फीलिंग का टाइम तो मैम जब है, अभी तो नहीं हुआ है, कि फादर कंधे पे हाथ रख के बोले कि बेटा वाह, तूने ये क्या किया है। ठीक वाह। है। लेकिन अभी तो वो ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन जो भी है अच्छा है। और अपने आप को ज्यादा वो नहीं रखता कि यार ये करना था, ये हो रहा है। ठीक है। तो उसके लिए तो यही है कि अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ है। हाँ, अच्छा होगा तो मैम वही है कि ये जो मैंने अपना 2 साल पहले स्टार्ट किया था पीओसी पे काम करना, उसमें जब मेरे को अचीवमेंट्स मिली, देखा मार्केट में कि एक मैजिक पिन, एक सुलेखा एंड इंडिया मार्ट, ये सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन जो थॉट्स प्रोसेस जो मेरी चीजें हैं वो अलग ही लेवल की हैं। तो मेरे को अंदर ही अंदर खुशी होती है कि हाँ यार, तूने कुछ तो सोचा है, कर पाए चाहे ना कर पाए वो आगे की बात है।
क्योंकि इतने 15 साल पुरानी कंपनीज हैं, इतना अच्छा का गवर्नमेंट से उनको इनिशिएट मिलता है, तो उसी से खुशी मिली है मैम अभी तक तो। और आईटी से तो रोजगार चल रहा है तो बेटर है। जी जी। वैसा भाई साहब एक क्वेश्चन ऐसा है, अगर आपके साथ मिलकर आपका जो टैलेंट है, अभी आपका कुछ नया प्रोजेक्ट्स जो है, ड्रीम प्रोजेक्ट्स है, कोई और आपके साथ देना चाहते हैं, तो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप उसके लिए ओपन हैं? यस मैम, ओपन है मैम, नो इशू। एक्चुअली मैंने नेस्ली से भी कोशिश करनी चाहिए थी एक बार। नेशनल एसोसिएशन ऑफ फेडरेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडरिंग समथिंग है नेस्बी। लेकिन क्या है मैम कि मैं डायरेक्टली इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं अब मेरे पास थोड़ा टाइम कम होता था। 2 साल में मैंने जो काम किया वो मैं 2 महीने में भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी अर्निंग्स को क्लोज नहीं कर सकता। मैं एक फैमिली पर्सन हूँ। जी जी। मैंने एक अपने दोस्त को भी रखा था जो कि मार्केटिंग और इससे रिलेटेड थे, लेकिन फिर वो इनिशिएट नहीं मिला ना एज ए फाउंडर उसको। मैंने बोला भैया माफी चाहूंगा, प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा डिलीवर करना है, चीजें बतानी पड़े हैं, फिर वो इनिशिएट नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा कि भैया जब तक पीओसी कंप्लीट नहीं हो जाता, एक रिप्रेजेंटेशन नहीं बन पाती, एक डेमो एप्लीकेशन नहीं बन जाती है, जब तक मार्केट में कोऑपरेटर्स को नहीं दिखाऊंगा। और एज ए इनिशिएटर या फिर एनजीओ से अगर मुझे कोई सपोर्ट मिलता है, गाइडलाइन मिलती है, तो मैं बी पार्ट ऑफ इट, वन बी पार्ट ऑफ इट, no issue में। That's really nice. Yeah. Yes. So, dear friends, if any one of you would like to connect with our special guest, Parveen Malik, he has beautiful ideas and thoughts which he would like to really put into the, scenario of the Indian market and get all of you into it such that it benefits you, it benefits everyone across the world. If you feel like connecting with our special celebrity, do contact him. He's really a wonderful person where you could collaborate, network, and go out together and prepare something nice for us and create a new world of joy, especially in the IT field. Yes, Yeah. wonderful, sir. Thank That's you. really Thank you nice. so much. Yes, thank you. Dear sir, आगे आने वाले 50 सालों में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं? आप एनी टू एक दो बदलाव, जैसे आईटी सेक्टर में या तो एनी सेक्टर में बताइए। मैम एक्चुअली आज के टाइम तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड होता जा रहा है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में तो अपग्रेडेशन आनी ही आनी है, लेकिन थॉट्स में भी इतनी अपग्रेडेशन आनी है कि एक नॉर्मल जो हम बचपन में अगर हमने कोई फिल्म देखी होगी, जो फिल्म में जो चीजें देखी होंगी आज वो रियल टाइम गाँव में भी महसूस करोगे आप, ठीक है। 15 साल या 20 साल पहले जो फिल्म में आपने चीजें देखी होंगी, अ, अब एक्चुअली सब चीजें नहीं बोल सकते हैं, मतलब इनडायरेक्टली ऐसे ही चीजें होती हैं। थोड़ा सा ओपन ओपननेस टेक्नोलॉजी में भी आएगी और थॉट्स में भी आएगी, जो कि आ रही है, आने वाले 5-4 साल में हमें देखने को मिलेगी। दो ही Wonderful. चीजें। That's really यस सर। very nice. अगर आपको मौका दिया गया पुराने जमाने में जाके किसी और की जिंदगी जीना है, बस आप किसका जिंदगी चुनना चाहेंगे? मैम देखिए वो तो एक वो वाली बात हो जाती है कि सपना है, देख लो, देखने के बाद मजा तो आएगा, देख रहे हैं जब। तो उस तरीके से देखा जाए तो मैं तो एल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर न्यूटन का उस टाइम को वो करना चाहूंगा जिस टाइम पे उस बंदे ने, न्यूटन ने, जब वो सोचा कि सेब गिरा तो कैसे गिरा, ठीक है। उस टाइम पे वो एक लूजर आज मोस्ट फेमस साइंटिस्ट बना। उसने अपने थॉट्स को कैसे मैनिपुलेट किया, वो एहसास जो है वो महसूस करना चाहूंगा, क्योंकि न्यूटन को आज हर कोई एक फेमस साइंटिस्ट मानता है, वेल नोन नाम है, 3 लॉज हैं उनके। लेकिन वो उस बंदे को सोसाइटी ने ये बोला था पागल है, पागल है, पागल है। लेकिन उन चीजों से वो कैसे उभर के एक स्टार बन के आया हमारे सामने, और जो आज भी इतने सालों बाद हम उनको रिस्पेक्ट के साथ उनको वो करते हैं। तो उस जो अनुभव को मैं एहसास करना चाहूंगा अगर हो पाया, वाह, अगर आप जैसा बोल रहे हैं तो। जी जी, ब्रिलियंट, वेरी नाइस। ओवरकम ओवरकम करना मैम बहुत सीख आता है। जी जी, बहुत खूब, वेरी नाइस। भाई साहब, आप दूसरों को जल्दी माफ कर देते हैं? ये कोई वेरी पर्सनल क्वेश्चन है ये, अपने दोस्तों को, एक्चुअली अपने कोलिग्स को। एक्चुअली मेरी वाइफ भी बोलती है, मेरे दोस्त भी बोलते हैं
जी। कॉर्पोरेट्स वाले भी। बोला सर आपको गुस्सा आता तो 1 मिनट का आता, उसके बाद भूल जाते हो। सामने वाली पार्टी अगर आपको जाके प्यार से बोलती है तो आप उसके साथ में जाके खड़े हो जाते हो, बात दोबारा से महसूस ही नहीं होता कि आपको 2 मिनट पहले इनके झगड़ा हुआ था। मास्टर मैं ऐसा ही हूँ, जो कह दिया मुंह पे कह दिया। अगर उसने उसको अगर उसने कोई पॉलिटिक्स खेली तो मैं बीटर बिहेवियर दिखेगा, नहीं तो उसने थप्पड़ भी मार दिया तो उसका भी अगर माफी मांग ली साथ ही साथ, थप्पड़ मार के और गले मिल लिया माफी मांग के, तो मैं भूल गया समझो, फिर नहीं बोलूंगा। हाँ, और अगर उसने कोई धोखा दिया है, ना थप्पड़ मारा ना कोई लूज किया, सिर्फ मेरे को हर्ट किया, डायरेक्टली हर्ट पे, मीन इमोशनली, तो मैं उसको कभी बात नहीं करता। मेरा एक दोस्त है जिससे मैं पिछले 8 साल से बात नहीं कर रहा हूँ, ना उससे लड़ाई हुई है ना कुछ हुआ है, सिर्फ उसका एटीट्यूड और उसका वे ऑफ टॉकिंग से थोड़ा सा अनटच हुआ, जस्ट फॉर कट ऑफ। यस। वेरी नाइस। हम भी ऐसी हैं, कोई सेम आपने जो एक्सप्लेन करा था अभी 2-3 लाइनों में, इट्स द सेम। आई ऑल्सो फील लाइक दैट। कोई हर्ट करे, कोई इंटेंशन रख के हर्ट करे तो उनको कट ऑफ करना है। आप अपनी जगह रहिए, हम अपनी जगह में ठीक है। अगर उसने गलती की है मैम, जी अगर उसने गलती की है जी जी और जी। उस गलती का एहसास उसको है और जी वो ऑन द स्पॉट अगर बोल रहा है तो वो आपका वेल वेल भी हो सकता है। जी लेकिन अगर आपको बिना बताए कोई चीज आपको हर्ट कर रही है और जी आपके सामने वो अच्छा बन रहा है, तो उससे तो दूर होना ही बेटर है। जी जी। उसके साथ झगड़ा करने का भी कोई मतलब नहीं बनता। मतलब ही नहीं है। यस। हाँ, उसको बताना भी नहीं है कि तूने किया क्या है। हाँ सुपर। भाई तुमने, हाँ यस मैम, क्योंकि उसने आपको बिना धोखा दिए, बिना बताए आपको धोखा दिया है। तो धोखा दे दिया तो आपको उसको सस्पेंस में ही रखना जरूरी है कि भैया तूने किया क्या है, नहीं है। वो एटीट्यूड वाला पर्सन होगा तो वो देखेगा ही नहीं इस चीज को। अगर एटीट्यूड नहीं होगा, आपका ओरिजिनल फ्रेंड होगा, तो वो वापिस आना ही आना है। यस। परफेक्ट। आई लाइक इट। यस। मुझे अच्छा लगता, क्योंकि मैं भी ऐसी हूँ आपकी तरह, ऐसी। यस। तो उनको ना ही बोलूंगी कि भाई उन्हें क्या करें, खुद लेट देम नो क्या मिस्टेक करे वो लोग, पीछे हट यस। जाना। यस। तो अभी आई कैन रेजोनेट विद यू इन एट एन इंटेलेक्चुअल लेवल। एक्चुअली यही होता है, टाइम विल रन, टाइम बहुत कुछ सिखा देता है। जी जी। यस। वेरी नाइस। भाई साहब, और कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? एक्चुअली मैं तो एक यंगस्टर को यही मैसेज देना चाहूंगा कि जैसे अब इंडस्ट्री में काफी चीजें नहीं आती जा रही हैं। अब कोई +2 में है, 11th 12th में है। अब आप एक मुंबई के लड़के को देखोगे जिसने कोरोना से पहले एक ढाबा, ये जो डिब्बे वाली फॉर्म्स, डिब्बे वाले जो मुंबई में सर्व करते थे, उनका एक पूरा नेटवर्क तैयार किया था। 18 साल का है वो लड़का, अब 18 का हो गया होगा क्योंकि उस टाइम पे 13 या 15 साल का था। अच्छा एंटरप्रेन्योर है। तो एज मैटर नहीं करती, अगर आपने कुछ सोचा है, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी फील्ड एक ऐसा है कि आप चाहे किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हो तो आप सीख सकते हो। क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं, जैसे अब यूट्यूब है, गूगल है, आपको हर चीज फ्री में मिल जाती है, हर चीज। अगर आप चाहते हो एप्लीकेशन बनाना, आप लेकिन नॉर्मल लेवल की एप्लीकेशन आप बना सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है। अगर आपने उसको हैवी कर दिया अपने ऊपर, यंगस्टर के लिए जैसे प्लस टू या बीटेक वाले बच्चे हैं, वो अपने आप पे हावी कर लेते हैं उस कंटेंट को, कि ये तो लैंग्वेज है, ये तो हम देसी भाषा में बोले तो मकोड़े मकोड़े से घूम रहे हैं। उनको देखेंगे तो फिर वो चीज, अगर उनको देखेंगे कि ये नॉलेज है और इसको मैं पकड़ सकता हूँ, तो पकड़ लोगे, आप आसानी से चीजें कर लोगे। मैं तो कहता हूँ कि मैम आज के टाइम टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत अवेयर होना बहुत जरूरी है आने वाले टाइम में। अभी जैसे हम लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, ऐप हैं, अगर हम उनकी चीजें अच्छे से समझेंगे नहीं, तो हमारे डाटा की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सनली आप टेक पर्सन नहीं है फिर भी आपको पता होना चाहिए कि किस लिंक पे क्या क्लिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बच्चों को भी अवेयर होना चाहिए। आजकल हम हमसे ज्यादा बच्चे फोन चला रहे हैं, 5 5 साल 7 साल वाले बच्चे जो हैं वो ज्यादा फोन चला रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि किस पे क्लिक करने पे क्या वेरिएंस आएगी, क्या नेगेटिविटी आएगी। वो चीजें एज ए फादर मदर, हम नॉन टेक्निकल पर्सन होते हुए, अभी मैं एज ए, मान लीजिए मुझे आप
मैं जो बोल रहा हूँ मैं एज ए नॉन टेक्निकल पर्सन बोल रहा हूँ अब, कि मैं एक्चुअली जिस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ एज ए उसी पॉइंट ऑफ व्यू अपने आप को रख के ही एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं नॉन टेक्निकल पर्सन हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, एक अभी नहीं पता टेक्नोलॉजी का, तो भी मेरा ये हक बनता है कि मैं अपने बच्चे को, अपनी बीवी को, पापा को फोन दूं, सारी चीजें अवेल करके दूं, तो समझाऊं कि इसको करने से बेटा ये होगा, इससे करने से ये होगा। और उसके बाद टाइम टू टाइम ट्रिगर और ट्रैकिंग करना उस फोन को, जो बच्चे के हाथ में, खास तौर पे बच्चे के हाथ में, उसके बारे में पता होना मैम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वर्गेलिटी एंड न्यूडिटी एंड so many spammers like things will happen in the current scenario, because we face many times. As a IT person, I will also face these scammers in daily life more than 5 times a day, many times, and make a solution for that. But मैम, चोर तो कोई भी रास्ता ढूंढ लेता है, चोरी करनी है उसका तो प्रोफेशन है। हम कोई भी चीज सीखेंगे उसको बंद करने की सीखेंगे, वो उस चीज को कैसे लूप होल ढूंढना है उसका उसका काम है। ठीक है, तो गूगल के थ्रू जो चीजें आती हैं वेरीफाई हो के आती हैं, उनको भी देखो आप। ऐसा नहीं है कि वो भी, मतलब सस्पेक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट फॉर ये कि एज ए नॉर्मल पर्सन, नॉन टेक पर्सन हो, टाइम टू टाइम अपना जो आप बच्चे को फोन दे के रखे हो, आप उसमें ये देखिए कि इस फोन में आपके बच्चे की वॉच हिस्ट्री क्या है, जस्ट फॉर, क्योंकि वॉच हिस्ट्री से आपको ये अंदाजा हो जाएगा बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि ये जो सोसाइटी, जो सोशल एप्स हैं, ये ही आपका क्लाइमेट चेंज कर दे रही है, बच्चे के माइंड सेट को चेंज कर रही है। 7 साल से 12 साल की बच्चा है या बच्ची है कोई, तो उसके लिए तो खास तौर पे ध्यान रखना जरूरी भी है। वो पढ़ाई करे चाहे ना करे, वो मैटर नहीं करता, लेकिन उसका जो बेस पॉइंट अगर प्रॉब्लम में आ गया, तो हमारे लिए हमारी परवरिश का कोई मतलब नहीं बनेगा। ये बहुत खूब आपने कहा, थैंक यू सो मच ये मैसेज के लिए, बहुत बहुत अच्छा था, थैंक यू। मैं तो सुन रही थी ऐसा कि भाई आपकी बात में बहुत सारी ताकत है और सच्चाई भी है। जी एक्चुअली मैम, उसके लिए माफी चाहूंगा, काफी टोकी पर्सन हूँ, आपको भी इंटरप्ट कर देता हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगा। नो नो और ऑडियंस से भी माफी चाहूंगा कि इन केस अगर किसी प्रकार की कोई मिस लीड किया हो या मिस वो किया हो, उसके लिए माफी चाहूंगा। और थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यू वेलकम। दोबारा आइए इस मंच पर, दोबारा शेयर कीजिए आईटी के बारे में, और जानकारी हमें चाहिए, आप आनी है हमारी मंच पर, अगेन शेयर। यस मैम, नो इशू, नो इशू मैम, बेशक। मैं एक्चुअली मैं एक चैनल भी चलाता हूँ अपने, उसको 2-3 महीने में एक बार ही वीडियो अपलोड कर पाता हूँ, जी क्योंकि प्रोफेशनल टाइम होता है कि, जी क्योंकि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जैसे आईटी पर्सन है, वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि हर चीज बता पाए। ठीक है, जैसे अभी इंडस्ट्री में लारावेल डेवलपर्स की बड़ी डिमांड है। अगर कोई +2 बच्चा है, +2 क्लियर किया है, और वो अपने अपने माँ बाप का एक सहारा बनना चाहता है, साइड इनकम करना चाहता है, तो कंपनीज आपको 12-15 हज़ार रुपए, 20 हज़ार रुपए साइड पार्ट ऑफ वर्क देगी। तो वो आपको इतना ह्यूज अमाउंट पे नहीं लेकर जा सकता। लेकिन आप एक स्टार्टिंग लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी छोटे स्टार्टअप में एंटर करते हैं, और साइड बाय साइड किसी यूट्यूबर से या किसी से भी, दुनिया भर के चैनल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही चैनल हूँ, क्योंकि मेरे पास, मैं कम से कम अपने 15 से 20 फ्रेंड्स को जो रास्ता भटक गए थे, उनको भी जरूरत पड़ी थी, तो उनको भी मैंने वो यूट्यूबर्स बताया। इंडियन यूट्यूबर्स भी हैं बहुत सारे, जो टेक्नोलॉजी में जो अभी करंट चल रही हैं, उनको आप वहां से गेन कर सकते हो। ठीक है, यस सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। thank you so much. Dear friends, with this, we'd like to end the Fab Talks. We had a fabulous time, interesting time getting to know Mr. Parveen Malik from Rohtak, Haryana. He has a lot of information to share. He shared with us, a very nice person, a person down to earth. We'd like to thank him. Sir, bahut bahut dhanyawad. Thank you. Thank you so much. With this, we'd like to end the Fab Talk show, dear friends. See you again soon. Stay safe.